Hello, learners, and welcome back to your own channel, LIY English. Learn it yourself. So, learners, this is the third and the last video on the chapter 1.8 Voyaging Towards Excellence from Class 12th English. I have already uploaded 2 videos in the chapter on my channel. I hope you have already watched that, but if you haven't, then I recommend you to stop here, go watch those 2 videos first because this video is the last video and is in continuation with the first 2 videos. इस चैप्टर वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस में हम अच्युत गोडबोले के बारे में पढ़ रहे हैं उन्हीं की ज़बानी एंड वी हैव लर्न सम ब्यूटिफुल लेसन्स फ्रॉम हिम सो फार while he's guiding us to the path of success. Now let us continue. I passed from IIT, joined a non-violent social movement for tribals with Sarvodaya, participated in a peaceful satyagraha, went to jail for 10 days, came back to Mumbai, was jobless for a while, worked for rupees 125 per month to supervise workers at the night shift in a mechanical workshop, changed 13 houses in Mumbai, and finally settled on information technology as my career. I spent 32 years in information technology, out of which I was a Chief Executive Officer or MD or the software head for 23 years for large global multinational software companies with thousands of software professionals worldwide and 6 offices in the US, 3 in Europe, 1 in Japan, and 1 in Australia. I had to travel all over the globe over around 150 times for business. During this period, I had also written 4 books with 500 to 700 pages each on information technology, published by Tata McGraw Hill and then translated into Chinese for global distribution. अछूत गोडबोले ने आईआईटी से पास होने के बाद सर्वोदया के नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट फॉर ट्राइबल्स में हिस्सा लिया। एक पीसफुल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने के बाद वो 10 दिन के लिए जेल भी गए। मुंबई वापस आने के बाद वो कई दिनों तक जॉबलेस रहे। ऐसे में एक मैकेनिकल वर्कशॉप में नाइट शिफ्ट पे 125 रुपए महीने के लिए उन्होंने काम भी किया। मुंबई में उन्होंने 13 घर बदले और फाइनली उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना करियर चूज किया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 32 सालों के अपने करियर में से 23 साल वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ एमडी या सॉफ्टवेयर हेड रहे बड़ी बड़ी ग्लोबल मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज के, जिसमें हजारों सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करते। इन कंपनीज के 6 ऑफिसेज यूएस में, 3 यूरोप में, 1 जापान और 1 ऑस्ट्रेलिया में थे। इसी वजह से उन्हें कई ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता ऑल अराउंड द ग्लोब, अराउंड 150 टाइम्स फॉर बिजनेस। ये सब करते हुए भी उन्होंने 4 बुक लिखी जो 500 से 700 पेजेस की थी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे टाटा मैकग्रॉ हिल ने पब्लिश किया था और उसे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाइनीज में ट्रांसलेट भी किया गया। I learned a lot of things when I was running these large companies. The first one was the importance of teamwork. In today's world, nothing is possible without teamwork. You cannot be successful if you are a loner or an egoistic person. Secondly, you need to lead from the front by setting a good example in front of your staff. Third was that you need to treat your subordinates and your colleagues as friends. In my career, I made a few mistakes, but learned a lot about motivation, being a good listener, target setting, and the art of delegation, which forms such an important part of today's management. इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के टॉप पोजीशन पे काम करते हुए राइटर ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सबसे पहली चीज़ वो कहते हैं कि उन्होंने सीखी वो थी इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। वो कहते हैं कि आज के ज़माने में कोई भी चीज़ टीम वर्क के बगैर इनकम्प्लीट है और इम्पॉसिबल है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, कामयाब बनना चाहते हो, तो आप बिना टीम वर्क के नहीं कर सकते हो। अगर आप लोनर हो, ऐसा इंसान जो हमेशा अकेला रहना चाहता है और लोगों से एसोसिएट नहीं करना चाहता, अगर आप इगोइस्टिक पर्सन यानी कि घमंडी हो, तो आप कभी भी टीम वर्क को रियलाइज नहीं कर पाओगे और आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने सीखी कि एक अच्छा लीडर कैसे होता है। एक अच्छा लीडर उनके हिसाब से अपने स्टाफ के आगे खुद को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनाता है। तीसरी चीज़ उन्होंने सीखी कि हमें हमेशा अपने सबॉर्डिनेट्स यानी हमसे नीचे काम करने वाले और कलीग्स हमारे साथी को फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करना चाहिए। राइटर कहते हैं कि मैंने अपने करियर में बहुत सारी गलतियां की, बट बहुत कुछ सीखा भी।
about motivation, being a good listener, target setting, and the art of delegation, which forms such an important part of today's management. After working for all these software companies for so many years, I wanted to run to my first love, that is, to read and write on various subjects concerning human life and existence. Therefore, I gave up two offers of around 3 crore rupees per annum to become a writer. This is how my second innings as a writer in Marathi began. After this, I have written about 34 books in Marathi. Most of them have become bestsellers with tens of thousands of copies sold for each. इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में इतने साल गुजारने के बाद राइटर ने डिसाइड किया कि वो अपने फर्स्ट लव यानी कि लिटरेचर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो इंसानी जीवन से जुड़े अलग अलग सब्जेक्ट्स विषयों पे लिखना और पढ़ना चाहते हैं और अपना ये ख्वाब पूरा करने के लिए और राइटर बनने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज टू अर्न 3 करोड़ रुपीस पर एनम ठुकरा दी। और इस तरह अच्युत गोडबोले ने अपनी सेकेंड इनिंग अपने करियर की सेकेंड इनिंग स्टार्ट की एज अ राइटर इन मराठी। इसके बाद उन्होंने 34 बुक्स लिखी मराठी में और उनमें से कई सारी बेस्ट सेलर्स रही जिनकी हजारों कॉपीज सेल हुई। However, it is not the sales or the money that is important to me as much as the fact that these books have brought about very good changes in the lives of thousands of readers. After reading my autobiography Musafir and a book on psychology Manat, hundreds have come out of depression and more than a dozen have given up thoughts of committing suicide and decided to start all afresh. There are hundreds who tell me that they understood the theory of relativity or Big Bang after reading my book on science, Kimayagar. My book Boardroom on Management has created at least 20 successful entrepreneurs. Then there are hundreds who tell me that they now can understand economic times or NDTV profit after reading my book on economics Arthat. Many have turned to mathematics after reading my book on mathematics Ganiti. अछूत गोडबोले कहते हैं कि उनकी बुक्स का बेस्ट सेलर्स बनना या ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करना उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उनके लिए ये जानना है कि बहुत सारे रीडर्स की लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं उनकी बुक की वजह से। उनकी बुक मुसाफिर और मानत पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें लिखते हैं और कहते हैं कि वो डिप्रेशन से बाहर आए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुसाइड करने का सोच रहे थे और उनकी बुक पढ़ने के बाद उन्होंने ये थॉट गिव अप कर दिया और अपनी ज़िंदगी फिर से स्टार्ट करने का सोचा। सैकड़ों ऐसे रीडर्स हैं जो राइटर को लिखते हैं और कहते हैं कि जो बड़े-बड़े और बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होते हैं जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और बिग बैंग, वो आज समझ पाते हैं क्योंकि उन्होंने राइटर की बुक पढ़ी है ऑन साइंस की मायागर। उनकी बुक बोर्डरूम पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने हैं। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो उनकी बुक ऑन इकोनॉमिक्स अर्थात पढ़ने के बाद कहते हैं कि अब वो इकोनॉमिक टाइम्स और एनडीटीवी प्रॉफिट समझ पाते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने उनकी बुक गणिती ऑन मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप किया। The same is true about my books on Indian music, Nadved, English literature, Zapurza, painting, canvas, Western films Limelight, and Western music Symphony, or books such as Genius series, Rakta or Vitamins or Anartha. It is these reactions of thousands of readers and the feelings that I am touching the hearts of thousands, if not lakhs, of my readers that keeps me going. Why am I telling you my story? When I look back, there are a number of lessons and values that I cherish and keep learning about even today. Some of these are thirst for knowledge, curiosity, humility, humanity, rationality, equality, teamwork, quest for excellence, never say die, thinking big. अच्युत गोडबोले। और ऐसे ही रिएक्शन उन्हें उनकी दूसरी बुक जैसे कि जपूरजा, नादवेद, कैनवस, लाइमलाइट, सिम्फनी, जीनियस, रक्ता, वाइटामिन्स और अनार्था के लिए भी मिले। राइटर कहते हैं कि उनके हज़ारों रीडर्स के ये रिएक्शन, ये फीडबैक और ये एहसास कि शायद उन्होंने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को, उनके दिलों को छुआ है, यही एहसास है जो उन्हें आगे बढ़ाते रहता है। यही चीज़ है जो उन्हें आगे चलने के लिए मोटिवेट करती होती है। राइटर पूछते हैं कि मैं क्यों अपनी स्टोरी आप लोगों को सुना रहा हूँ। इसलिए क्योंकि आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैंने बहुत सारे लेसन सीखे, बहुत सारी
वैल्यू सीखी जो आज भी मैं चेरिश करता हूँ, जिसे आज भी मैं मानता हूँ और उनके बारे में आज भी मैं सीखता रहता हूँ। और ये सारी जो चीज़ें उन्होंने सीखी अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, वो हमारे साथ वो शेयर करते हैं ये फाइनल फ्यू लाइन्स में। बेसिकली वो अपने सारे जीवन का सार हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इंसान में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए अगर वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। वो अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने शुरुआत से बताया कि जिस फैमिली से वो बिलोंग करते थे, जिस लोअर मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करते थे और इतने ज़्यादा लाइफ में उन्होंने प्रॉब्लम देखे, स्ट्रगल किए, पूरी लाइफ की उन्होंने पिक्चर हमें बताई। फाइनली फिर भी वो इतने सारी फील्ड में सक्सेसफुल रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो इतने सक्सेसफुल रहे हैं और फाइनली उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया राइटर बनकर, और उसमें भी वो इतने ज़्यादा पॉपुलर रहे, फेमस रहे और इतनी ज़्यादा उन्होंने सक्सेस पाई। तो ये सब चीज़ वो कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतनी सारी चीज़ें सीखी, वो जो हमसे शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। वो कहते हैं, दीज आर द लेसन्स दैट आई हैव लर्नड इन माई लाइफ एंड दे आर थर्स्ट फॉर नॉलेज। कि हमेशा हम लोगों को नॉलेज की तरफ, नॉलेज गेन करने से कभी नहीं रुकना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ हम जब स्कूल या कॉलेज में हैं हम तभी तक सोचे कि हमें पढ़ना है। हमें हर सिचुएशन में और हर जगह और हर एज पे नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। वो कहते हैं क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बहुत बड़ी चीज़ है। थ्रू आउट उन्होंने अपने चैप्टर में बताया है कि कैसे वो मानते हैं कि जिज्ञासा ही है जिसकी वजह से इंसान इतना ज़्यादा प्रोग्रेस पाया है। ह्यूमिलिटी, कि आप कितना भी अचीव कर लो, हमें उस बात का घमंड नहीं होना चाहिए, बट हमें हमेशा ऐसे लगना चाहिए कि हमें अभी और अचीव करना बाकी है। ह्यूमैनिटी, फाइनली आपकी सारी प्रोग्रेस शुड बी फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। आपका जो भी ज्ञान है वो इंसानियत के काम आना चाहिए। रैशनैलिटी, वी शुड ऑलवेज बिलीव इन इक्वालिटी, वी शुड ऑलवेज बिलीव ऑन थिंग्स दैट वी एक्चुअली कैन प्रूव। देन टीम वर्क, हमें हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। एंड फाइनली हमेशा हमेशा अपने आप से बेहतर करने की कोशिश करना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और हमेशा बड़े से बड़ा सोचना चाहिए, अपने से हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए। सो दीज आर द ब्यूटिफुल लेसन्स दैट वी लर्न फ्रॉम अच्युत गोडबोले with his autobiographical text Voyaging Towards Excellence. So learners, that's it for today's video. I hope you enjoyed learning with me. If you did, give this video a thumbs up, share among your friends and subscribe to the channel. Thank you very much.